Hello students, how are you all? Today we are going to study about direct and indirect speech. Now what is a direct and indirect speech? उसमें सबसे पहले हमें क्या समझना होगा कि स्पीच क्या होता है. स्पीच क्या होता है जो हम बोलते हैं, लिखते हैं, है ना? चलिए let's start. The speech. The word speech means whatever we speak or write, जो हम लिखते हैं और बोलते हैं. Speaking or writing the words of another person can be done in two ways, और ये दो तरीके से की जाती है. By repeating the words of the other person as they are, by stating the meaning of the words of the other person in your own words. देखिए कैसे की जाती है. या तो हम कोई इंसान बोल रहा है तो उसके वर्ड्स को हम रिपीट करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, बाय स्टेटिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स ऑफ द अदर पर्सन इन योर ओन वर्ड्स, या फिर जो इंसान बोल रहा है उसको अपने तरीके से अपने शब्दों में उसके मीनिंग को बताने से, हम बोलने से उसको स्पीच कहते हैं. ठीक है. सपोज एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अमन स्पीक्स द वर्ड्स आई एम इल टूडे. अमन ने कहा आई एम इल टूडे, मैं आज बीमार हूँ. Any person other than Aman can express his words in the following two ways. अब अमन ने तो कहा I am sick today. अब दूसरा इंसान इसको कैसे बोलेगा? अमन said I am ill today. अब एक इंसान दूसरे को कह रहा है कि अमन said that he is ill today. वो बीमार है और वो रिपीट किया ना उसकी बात को कि he is ill, है ना. और he can say अमन said that he was ill that day. अब उसने कहा कि वो उस दिन बीमार था. ठीक है. सो ये दो तरीके हो गए एक ही बात को कहने के. Now there are two types of speech. Speech. Now one is direct speech and one is indirect. ठीक है. तो दो तरीके की स्पीच होती है, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट. अब डायरेक्ट स्पीच क्या होती है कि जैसे कि अमन ने सीधा कहा आई एम इल टूडे. इन द अबव सेंटेंस आई एम इल टूडे, जैसे उसने कहा आई एम इल टूडे, आई एम इल टूडे. अब उसने डायरेक्टली कहा आई एम इल टूडे, मैं बीमार हूँ. So in this above sentence, the very words of the speaker, I am ill today, are quoted within inverted commas. सबसे पहले तो ये inverted commas के बीच में है. ठीक है. फिर उसके बाद इस they are in the inverted commas, दोनों तरफ inverted commas हैं, full stop है. तो ये क्या हो गया? This is called the direct speech. The sentence within inverted comma is called reported speech. और जब inverted commas में कोई speech होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? Reported speech. Reported speech within inverted commas. Within inverted commas. Within inverted commas जब भी कोई चीज होती है उसको हम कहते हैं reported speech. The verb that introduces the reported speech is called reporting verb. और अगर उसमें कोई verb है उसको हम क्या कहेंगे? Reported verb. Now indirect speech क्या होता है? अगर हम कहें अमन said that he was ill that day. Aman said that he was ill that day. अमन ने कहा कि वो उस दिन बीमार था. तो ये इनडायरेक्ट है. वो तो सीधा उसने कहा मैं बीमार हूँ. वो क्या हो गया? डायरेक्ट, एकदम सही, सामने सामने. इनडायरेक्ट क्या हुआ? अमन ने कहा था कि ही वॉज इल दैट डे. ये इनडायरेक्टली आ रही है ये बात. ठीक है.
In the above tense, we have reported what the speaker said, that is, he was ill that day, without quoting the exact words. This is called indirect speech. अब इसमें quotes नहीं लगी है, inverted commas नहीं है, और उसने कहा कि उस दिन वो बीमार था, तो ये क्या हो गया? ये हो गया indirect speech. Carefully the following words. Direct speech. The reported speech is put within the inverted commas. ये हमेशा याद रखना, ठीक है? The first word of the reported speech begins with a capital letter. हमेशा ये capital letter से begin होएगी reported speech, first word, ठीक है? The reported speech is separated by a comma from the reported verb. अब अगर इसमें comma लगा होता तो वो reported verb अगर लगा होता तो comma भी लग जाता इसमें. Now, indirect speech. Inverted commas are not used for the reported speech. अब inverted commas में जो speech होती है उस indirect speech में जो speech होती है उसमें inverted commas नहीं लगते. It is generally introduced by the conjunction that, if, to. इसमें क्या use होता है? Conjunctions, जैसे that he was ill, if he will go there, that if, ठीक है, ये यूज होते हैं. The comma separating the reported verb from the reported speech is removed. इसमें indirect में क्या होता है? Reported verb और reported speech के बीच में commas नहीं होते. The tense of the reported verb is never changed. वो कभी change नहीं हो सकता. Now rules for the change of tenses. Conversion of assertive sentences into direct speech. अब assertive sentences को direct speech में कैसे convert करना है? If the reported verb is in the present or future tense, the tense of the verb in the reported speech is not changed at all. Now, वो कह रहा है कि अगर रिपोर्टेड वर्ब जो है वो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है, वो जो टेंस होता है वर्ब रिपोर्टेड स्पीच में वो कभी चेंज नहीं होता. जैसे डायरेक्ट में कहा उसने, आई से रीना इज अ स्टूडेंट. रीना इज अ स्टूडेंट. ये क्या है? हमारा डायरेक्ट स्पीच हो गई, ठीक है. अब इनडायरेक्ट में हम इसे कैसे लिखेंगे? आई से दैट Reena is a student. ठीक है, ऐसे ही he says she is a nurse, he says that she is a nurse. अब आपने एक चीज देखी है, हमने पहले क्या कहा था? इनडायरेक्ट में क्या लगता है? that, if, ठीक है, तो इसमें हमने that लगा दिया. सो ऐसे आपके जो होते हैं ना, ये कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट होते हैं तो इसमें ऐसे दैट इफ लग जाता है और इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं. नाउ चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब. अब अगर वर्ड को चेंज करना है, जैसे कि डायरेक्ट में क्या यूज होता है हमारा? डायरेक्ट में क्या वर्ब्स यूज होते हैं? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. ठीक है, डायरेक्ट में क्या यूज होता है? जैसे से का सेज, से, सेज, सेज, सेड, सेड. ठीक है, और इनडायरेक्ट में क्या होता है? जैसे टेल, टेल्स, टोल्ड, ऐसे. ठीक है, इन रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, विल से, शैल से, सेड, सेड टू आर फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट. इनके बाद ऑब्जेक्ट लगता है. दे विल चेंज इनटू टेल. और दे कैसे चेंज हो जाते हैं? इनटू टेल, टेल्स, विल टेल, शैल टेल एंड टोल्ड. अदरवाइज दे विल रिमेन द सेम.
Now, changing tense. If the reported verb is in the past tense, the tense of the reported speech will change. Like simple present changes into simple past tense. हमने present tense past tense पढ़ा था previous classes में, तो इसमें भी वही होता है. Simple present tense किस में change हो जाएगा? Simple past tense में. Suppose if he says डायरेक्ट स्पीच में he said inverted commas संध्या sings a nice song inverted commas close. इनडायरेक्ट में क्या आएगा? he said that संध्या sang a nice song. sings का क्या हो जाएगा? sang हो गया, और क्या लग गया यहाँ पर? that लग गया, isn't it? so ऐसे डायरेक्ट स्पीच में होगा he said the girls are picking flowers. इनडायरेक्ट में ये इन्वर्टेड कॉमर्स में था. इनडायरेक्ट में क्या होगा? he said that the girls were picking flowers. तो आप एक चीज देख रहे हैं, that यूज हो रहा है, were यूज हो रहा है. तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है. नाउ all present tense change into their corresponding past tense. और present tense हमेशा किस में change हो जाता है? past tense में. जैसे is, am, become, becomes, was, were, were, can, may, become, becomes, could, might. ठीक है? The forms of could, should, would, might, had are not changed. इनके forms नहीं change होते. could, should, would. ठीक है? डायरेक्ट स्पीच में सपोज हम लिखते हैं जैसे I said to him I am a poor man. I said to him I am a poor man. जैसे अगर मैंने ये लिखा I am a poor man, और अगर इनडायरेक्ट में से हम लिखें तो क्या आएगा? I told him. I told him that I was a poor man. I was a poor man. ठीक है? ये क्या हो गया हमारा? ये डायरेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट हो गया जब हम प्रेजेंट टेंस में कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट फॉर्म लगाते हैं. ठीक है? If the reported speech expresses some universal truth, habitual fact, historical fact or proverb, the tense of the verb in the reported speech is not changed into past. As अब रिपोर्टेड स्पीच जो है, रिपोर्टेड स्पीच को जब आप उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ बताते हैं, कोई हैबिचुअल फैक्ट बताते हैं या हिस्टोरिकल फैक्ट बताते हैं, तो वो जो प्रोवर्ब होता है, द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच जो होती है वो नहीं चेंज होती. जैसे कि द टीचर सेड द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. ऑब्वियसली द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, ये नेचुरल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें चेंज नहीं होगा. द टीचर सेड दैट द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, वो एज इट इज ही दोबारा लिखा जाएगा. जैसा डायरेक्ट स्पीच में होगा वैसे ही इनडायरेक्ट में होगा, उसमें चेंजेस नहीं होंगे, और बस सिर्फ इतना ही होगा कि इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे. ठीक है? जैसे मैंने कहा आई सेड आई एम एन अर्ली राइजर. आई सेड, ये फैक्ट बोल रहा है वो, आई एम अर्ली राइजर. ठीक है? ये फैक्ट बोला उसने. ठीक है? आई एम ए अर्ली राइजर. तो इसको अगर हम वैसे लिखेंगे तो फिर लिखेंगे आई सेड दैट आई एम अ अर्ली राइजर. दैट आई एम अ अर्ली राइजर. ठीक है? सेम ही आएगा, सिर्फ दैट लगेगा और कुछ नहीं. तो जब ये फॉर्म्स होती है ना जिसमें यूनिवर्सल फैक्ट या हैबिचुअल फैक्ट या हिस्टोरिकल फैक्ट होता है, द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच नॉट चेंज्ड, वो चेंज नहीं होता. तो ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है? जब भी आप ऐसे करेंगे. चलिए आगे चलते हैं. नाउ चेंज ऑफ प्रोनाउन. Pronouns of the first person change according to the person of the subject of the reporting verb. अब जो pronoun है वो change हो जाता है according to the subject. First person जो होता है उसके accordingly. जैसे कहा I said I have done my duty.
अब उसने कहा आई सेड आई हैव डन माई ड्यूटी, ये है डायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमास में। तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, आई सेड दैट आई हैड डन माई ड्यूटी, मैंने की थी अपने ड्यूटी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। राम ही सेड आई हैव डन माई ड्यूटी, राम he said that he had done his duty. So see the things changing, how the pronoun is being changed, ठीक है, from first person to the person of the subject, fine. Now change of words denoting time and position. अब जहाँ time और position हो वहाँ पर कैसे words change होते हैं. So here becomes there, ago becomes before, thus becomes so, this becomes that, today becomes that day, now becomes then. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी, इसके अकॉर्डिंगली आपको चलना पड़ेगा, ठीक है, तो उससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कैसे इनको चेंज करना है, ठीक है। Now अब जैसे इसमें सर और मैडम हैं, उनके आगे क्या लग जाता है, चेंज इनटू रिस्पेक्टफुली। डायरेक्ट स्पीच में जैसे कहा भीम सेड टू मी आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, भीम डायरेक्ट स्पीच में क्या होएगा, भीम टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू दिल्ली द नेक्स्ट डे। अभी हमने क्या किया, अभी हमने यही पढ़ा ना कि ये क्या चेंज हो जाएंगे, टुडे का दैट डे हो जाता है, येस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा, नाउ का देन, दिस का दैट, है ना, तो ऐसे ये चीजें चेंज हो जाएंगी। जैसे कहा राजू सेड आई वेंट टू द जू येस्टरडे, डायरेक्ट में, अब येस्टरडे चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट में, राजू सेड दैट ही हैड गॉन टू द जू द प्रीवियस डे, ठीक है, तो ऐसे आपको ये चेंजेस करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ क्वेश्चंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब क्वेश्चंस को कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। द रिपोर्टेड वर्ब इज चेंज टू आस्क्ड, इंक्वायर्ड एंड डिमांडेड। ये रिपोर्टेड वर्ब किस में चेंज हो जाता है, आस्क में, इंक्वायर में, डिमांड में। whether or if is used if the reported speech begins with a helping verb or a modal auxiliary like do, does, did, is, am, are, and could, should, would, etc. in place of comma and inverted commas. कई बार क्या होता है कि हम रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास नहीं होते और वो यूज़ करते हैं डज, डिड, शुड, कुड, वुड, ठीक है, तो तब ऑल क्वेश्चंस बिगिन विद इंटेरोगेटिव वर्ड्स, और सारे क्वेश्चंस किससे बिगिन होते हैं, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब इंटेरोगेशन करना, ठीक है, जैसे हाउ, व्हाट, रिमेन, अनचेंज्ड, ये क्या होता है, हाउ, व्हाट, हु, ये आएगा क्वेश्चंस में। नाउ द interrogative form is changed into assertive form, the question mark is dropped, और इसमें क्या हो जाता है, वो assertive form में हो जाता है और question mark हट जाता है इसके आगे से, ठीक है। Tense pronouns and words denoting nearness are changed according to the rules. कहते हैं tense जो है वो according to the rules change हो जाते हैं। जैसे उसने कहा he said to me, do you take tea? अब उसने क्या कहा कि he said to me, do you take tea? Take tea, क्वेश्चन मार्क, उसने क्वेश्चन पूछा उससे, ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब इनडायरेक्ट में क्या लिखेगा, he asked me if I took tea, he asked me if I took tea, if I took tea, ठीक है, वो ऐसे लिखेगा फिर। तो अब इसमें क्या हुआ, हमारा क्वेश्चन मार्क हट गया, लेकिन क्वेश्चन फिर भी है कि उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं चाय पीता हूँ, ठीक है। सो आई सेड टू हिम डज शी टेक टी, मैंने उससे कहा कि क्या आप चाय लेती हैं, वो फिर क्या कहेगा इनडायरेक्ट में, आई आस्क्ड हिम इफ शी टुक टी, क्या उसने चाय ली,
ठीक है. So these are the changes when the form of the things speech change. Now this was the conversion of a question into indirect speech. कैसे एक क्वेश्चन को indirect speech में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. Now conversion of exclamation and wishes into the indirect speech. The reported verb is changed into a wish, prayer, bless, cry, exclaim, with such phrases as with regret, with delight or with sorrow when necessary. अब क्या होता है इसमें, reported verb जो होता है वो change हो जाता है wish में, किसी prayer में, किसी blessing में. ठीक है. The interjection such as hooray, alas, bravo, oh, well, curse, it are omitted and their sense is expressed by means of phrases. अब इसमें एक जो एक एक्शन होता है, हमारे अंदर से एक कहते हैं ना कि खुशी के मारे ओह वाओ दैट काइंड ऑफ. ठीक है, वो जो क्या होता है वो उसको हम ओमिट करके उसको फ्रेजेस में कन्वर्ट कर देते हैं. द एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इज चेंज इनटू अ स्टेटमेंट, और एक्सक्लामेशन वाली सेंटेंस को हम स्टेटमेंट बना देते हैं. इट इज कन्वर्टेड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, वो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे कि ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, ब्लेसिंग दे रहे हैं ना. ही said to me may you live long, may you live long. अब इसको जब इनडायरेक्ट में क्या आएगा, ब्लेसिंग है, प्रेयर है, ये प्रेयर है ना, तो हम क्या लिखेंगे, he prayed that I might live long, फाइन. तो ये क्या बन गया, ये चेंज हो गया. यहाँ पर हमने क्या यूज कर दिया उसकी जगह, prayed. ठीक है. ऐसे ही she said may you win a scholarship, so she wished that he might win a scholarship. उसने क्या किया, उसने विश की कि he might win a scholarship. ठीक है. तो ये हमारे क्या हो रहा है, now the conversion of exclamation and wishes into indirect speech. ये wishes हैं जिनको वो indirect speech में convert कर रहे हैं. ठीक है. Now conversion of imperative sentences into indirect speech. अब imperative sentence को indirect speech में कैसे convert करते हैं? The reported verb is changed to order or request or advice. Reported verb या तो किसी order में change हो जाता है, या request में, या advice में. जैसे other words that can be found suitable are you can ask, beg, command, forbid, urge, etc. The verb of reported speech is changed into an infinitive to come, open, etc. और reported speech किस में change कर सकते हैं हम, come में, open में. ठीक है. Instead of imperative form used by the speaker in direct speech. Please and kindly are dropped in indirect tenses. Please, kindly, ये जो request है ये drop कर दी जाती है indirect speeches में. So suppose it is he said to us please wait for me. अब अगर हमने लिखा he said to us please he said to us please wait for me, he said to me please wait for me. ठीक है. तो अब इसको इनडायरेक्ट में क्या कर रहे हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं. सो वी विल राइट ही रिक्वेस्टेड us to wait for him, ठीक है. तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा, हमने रिक्वेस्ट उसकी वो डाल दी. ठीक है. सो रिपोर्टेड वर्ब किस में चेंज हो गया हमारा, रिक्वेस्ट में चेंज हो गया. अब जैसे एक और एग्जांपल है, द ऑफिसर सेड टू हिज सोल्जर्स शूट. नाउ अब ऑफिसर ने क्या कहा अपने सोल्जर्स को, शूट.
The officers said soldiers shoot. ठीक है, अब ये ऑफिसर्स क्या कह रहे हैं कि शूट कर दो, तो शूट करना क्या होता है, किसी को ऑर्डर देना, किसी को कमांड देना, है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, द ऑफिसर्स, या तो यहाँ पर आएगा कमांडेड, और या फिर क्या आएगा, ऑर्डर्ड, commanded, ordered his soldiers to shoot, फाइन। तो अब आप देख रहे हैं कैसे वो इनडायरेक्ट में जब आता है तो कैसे चेंज हो जाता है डायरेक्ट स्पीच से। ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे हम सीनियर क्लासेस में जाएंगे और डीपली इसको स्टडी करेंगे, अभी थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए अकॉर्डिंग टू द टेंसेज, इसके लिए आपको सारे टेंसेज क्लियर होने चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जो हम कॉमन ग्रामर कर चुके हैं, जैसे कि अभी हमने कहा वर्ब वगैरह, ये सब आता है, ठीक है। रिपोर्टेड वर्ब हो गया, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हो गए, ठीक है। ये सब क्या है, अभी हमने सेंटेंसेस में भी पढ़ा था, इजंट इट। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको क्लियर होनी चाहिए, टेंसेस वगैरह, तो आपको ये समझना इजी हो जाएगा। प्रोनाउंस क्या होते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि जब वो जो सिंपल सा ग्रामर था वो क्लियर होगा, तो आगे जितना और टफ होता जाएगा वो करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इससे रिलेटेड मैं यही एडवाइस करूँगी कि थोड़े से सेंटेंसेस डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच के टीचर्स क्लास में करवा सकते हैं, और उनसे रिलेटेड इन्हें थोड़े से क्वेश्चंस दीजिए, प्रैक्टिस करेंगे, और धीरे धीरे दे विल अंडरस्टैंड, बिकॉज इट्स अ लिटिल बिट टफ टॉपिक, सो it will take time for them to understand, so make them practice, and I think कुछ चीज़ें repeat हो रही हैं, like tenses, verbs and pronouns, तो वो उन्हें clear होंगे तो वो ये कर लेंगे, ठीक है। तब तक हम फिर अब अगली क्लास में मिलेंगे। Till then, take care, bye.